السلام علیکم ناظرین، خبر نامے میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ آر ٹی سی ملازمین کو 44% فٹمنٹ دینے سے وزیر اعلیٰ کا اتفاق، ملازمین تنظیموں کے ساتھ وزیر اعلیٰ کی بات چیت۔ $4,300 کانٹریکٹ ملازمین کو باقاعدہ بنانے کا اعلان، آر ٹی سی کے سبکدوش ملازمین کو مفت سفر کی سہولت فراہم کرنے کا تیقن۔ سوچھ حیدرآباد پروگرام کے تحت شہر کے 400 حصے، ہر حصے کا ذمہ دار ایک عوامی نمائندہ یا سرکاری عہدیدار۔ اور تلنگانہ میں جمعرات کو ایم سیٹ امتحان، تمام تیاریاں مکمل، وقت سے پہلے امتحانی مراکز پہنچ جانے طلباء کو مشورہ۔ اور اب تفصیل۔ وزیر اعلیٰ کے چندر شیکھر راؤ نے آر ٹی سی ملازمین کو 44% فٹمنٹ دینے سے اتفاق کر لیا ہے۔ ملازمین تنظیموں کے ساتھ حکومت کی بات چیت کامیاب رہی، جس کے بعد ملازمین تنظیموں نے 8 دن سے جاری ہڑتال کو ختم کرتے ہوئے خدمات پر رجوع ہونے کا فیصلہ کیا۔ ملازمین تنظیموں سے بات چیت کے بعد وزیر اعلیٰ نے کہا کہ آر ٹی سی پہلے سے ہی خسارے کا شکار ہے۔ 1,900 کروڑ روپے کا قرض اور ملازمین کی تنخواہوں کے 1,380 کروڑ روپے کے بقایا جات پائے جاتے ہیں۔ اضافی فٹمنٹ سے کارپوریشن پر مزید 821 کروڑ روپے کا بوجھ پڑے گا۔ وزیر اعلیٰ نے بتایا کہ آر ٹی سی کو منافع بخش بنانے کے لیے سخت اقدامات کی ضرورت ہے۔ کانگریس نے آر ٹی سی کو تباہ کر کے رکھ دیا تھا۔ اس کارپوریشن میں 56,000 سے زائد ملازمین خدمات انجام دے رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ بجٹ میں آر ٹی سی کے لیے خصوصی گرانٹ مختص کی جائے گی اور شہری علاقوں میں چلائی جانے والی بسوں کی 200 کروڑ روپے کی سبسڈی جی ایچ ایم سی ادا کرے گی۔ انہوں نے بتایا کہ 44% فٹمنٹ پر جون سے عمل آوری ہوگی۔ ملازمین کے بقایا جات کی 50% رقم بانڈ کی شکل میں دی جائے گی، جبکہ 50% کی رقم 3 حصوں میں ادا کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہڑتال کے دوران ملازمین پر عائد کردہ مقدمات سے دستبرداری اختیار کرتے ہوئے معطل شدہ ملازمین کو بحال کیا جائے گا۔ انہوں نے بتایا کہ 4,300 کانٹریکٹ ملازمین کو باقاعدہ بنایا جائے گا۔ سبکدوش ملازمین کو مفت سفر کی سہولت بھی فراہم کی جائے گی۔ ہڑتال کے دنوں کی تنخواہ بھی ادا کی جائے گی۔ وزیر اعلیٰ نے اعلان کیا کہ آر ٹی سی کو منافع بخش بنانے کے سلسلے میں ملازمین تنظیموں کے ساتھ اجلاس طلب کیا جائے گا۔ జూన్ మాసం నుంచే దీన్ని ఇంప్లిమెంట్కి వస్తుంది। ఈ మేకు రాదు, జూన్ నుంచి వస్తుంది। ఇప్పుడు రాకుండా అరియర్స్ ఏదైతే ఉందో ఒక 50% బాండ్స్ రూపంలో తీసుకోవాలని 5 years తర్వాత, మిగిలిన 50% మటుకు కార్మికులకు కొన్ని అప్పులు ఉంటాయి, పిల్లలు చదువులు ఉంటాయి కాబట్టి అరియర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఉగాది, దసరా, ఫస్ట్ దసరా అంటే 3 భాగాలు చేసినట్టు 50% అరియర్స్ను తమ్మే సందర్భంగా అక్కడక్కడ జరిగినటువంటి సంఘటనలలో ఏవైతే కేసులు పెట్టినో యాజమాన్యం మొత్తం ఉపసంహరించుకుంటుంది। ఆ కేసులన్నీ కూడా రద్దు చేయబడతాయి। అన్ని కేసులు విత్డ్రా చేసుకుంటారు। ఎవరినైతే 5-10 మందిని సస్పెండ్ చేసినారో ఆ సస్పెన్షన్ అన్ని కూడా ఈ రోజు ఎత్తివేస్తారు। 4,300 మంది కాంట్రాక్ట్ కార్మికులు ఉన్నారు, వాళ్ళకు కూడా మొత్తం రెగ్యులరైజ్ చేస్తున్నారు రేపటి నుంచే। వాళ్ళందరూ కూడా ఈ జూన్ నుంచే పెంచిన జీతాలు కూడా వాళ్ళకి అందించబడతాయి। ఆ ప్రకారంగా ముందుకు పోతాం। మే చివరిలో ఒక రోజు మార్నింగ్ టు ఈవినింగ్ నేనే మొత్తం కార్మిక నాయకులను యాజమాన్యాన్ని పిలిచి కూర్చొని మాట్లాడి ఏమేమి స్టెప్స్ తీసుకుందాం, ఎట్లా తీసుకుందాం, ఈ అప్పులు ఎట్లా వదిలించుకోవాలి, ఒక వ్యూహం రూపొందించుకుంటాం। మే చివరిలో ఆ వ్యూహం రూపకల్పన తర్వాత स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत 16 मई को वजीर आला के चंद्र शेखर राव जामे उस्मानिया, अड्डा गट्टा और पारसी गुड़ा इलाकों में दौरा करेंगे। रियासती वजीर एक्साइज पद्मा राव ने बताया कि शहर में 400 हिस्से बनाए गए हैं और हर हिस्से का एक अवामी नुमाइंदा या ओहदेदार जिम्मेदार होगा। वजीर आला के चंद्र शेखर राव पारसी गुड़ा, अड्डा गट्टा और उसके आसपास के इलाकों के जिम्मेदार हैं। वज़ीर आला ने प्रोग्राम के इंतजामात के सिलसिले में चारशंबे के दिन मुख्तलिफ महकमों के अहदेदारों का इजलास तलब किया। पद्मा राव ने बताया कि हर महीने में एक दिन सफाई मुहिम में रियासती वज़रा
पार्लियामेंट, असेंबली और कौंसिल के अरकान के अलावा आला ओहदेदार हिस्सा लेंगे। कुल हिंद कांग्रेस कमेटी के नायब सदर राहुल गांधी के दौरे के सिलसिले में तैयार की गई गीतों की सीडी की रस्म इजरा गांधी भवन में अंजाम दी गई। कारगुजार सदर डी विक्रमार्का ने इस मौके पर बताया कि राहुल गांधी 14 में बरोज़ जुमेरात शमशाबाद एयरपोर्ट पहुंचेंगे। हज टर्मिनल पर वो 45 मिनट तक कांग्रेसी कायदीन से मुलाकात करेंगे। राहुल गांधी उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तलबा के एक वफ्द से भी एयरपोर्ट पर मुलाकात करेंगे। बाद में शहर के मासाब टैंक, पंजागुट्टा, बेगमपेट, बोयनपल्ली और तोपरान कामारेड्डी से होते हुए निर्मल पहुंचेंगे। 15 मई को राहुल गांधी सुबह 7 बजे से 15 किलोमीटर पैदल दौरा करते हुए किसानों से मुलाकात करेंगे और शाम में 4 बजे जलसे से खिताब करके हैदराबाद वापस होंगे। उस्मानिया यूनिवर्सिटी की तलबा तंजीम ने राहुल गांधी के दौरे की तायीद का ऐलान किया है। టోటల్ టూర్ ప్రోగ్రామ్ కాగితాలు కూడా మీ అందరికీ ఇవ్వబడతా ఉన్నాయి. స్నేహితులారా, శ్రీ రాహుల్ గాంధీ గారు ఢిల్లీ నుంచి మే 14, 2015 4 గంటల ఫ్లైట్ కి బయలుదేరి హైదరాబాద్ చేరుకుంటారు. 4 గంటల నుంచి 4:45 వరకు మధ్యలో హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్ లో హజ్ టెర్మినల్ లో ముఖ్యుల్ని కలుస్తారు. అక్కడి నుంచి నిర్మల్ కి బయలుదేరుతూ శంషాబాద్, మాసబ్ ట్యాంక్, పంజగుట్ట, బేగంపేట్, బోన్పల్లి, సుచిత్ర ఎక్స్రోడ్స్, మేడ్చల్ మీద నుంచి తూప్రాన్, కామారెడ్డి, డిచ్పల్లి, మామిడిపల్లి, పర్కిట్, బాలకొండ, నిర్మల్ చేరుకుంటారు. तेलंगाना में जुमेरात 14 मई को मुनक्किद होने वाले एमसेट इम्तिहान के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। तेलंगाना आला तालीमी महकमे के सदरनशीन पापी रेड्डी ने भी कहा है कि शहरी और देही इलाक़ों में तलबा की सहूलतों के लिए मौसर इंतजाम किए जा रहे हैं। तलबा और सरपरस्तों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने तलबा से 1 घंटा पहले ही इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाने की हिदायत दी। एमसेट कमेटी के कन्वीनर रमना राव ने भी कहा कि 1 मिनट ताख़ीर से पहुँचने वाले तालिब इल्म को इम्तिहान लिखने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो इस बात की कोशिश करें कि जल्द से जल्द इम्तिहानी मराकिज़ पहुँच जाएँ ताकि उन्हें किसी भी तरह की कोई तकलीफ़ का सामना करना न पड़े। తెలంగాణ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అన్ని విధాలుగా ఏర్పాటు చేస్తున్నది. దూర ప్రాంతాల్లో ఉన్న విద్యార్థులు ఆ ఎగ్జామ్ రీజనల్ సెంటర్ పోవడానికి ఇవాళ సాయంత్రం నుంచి వెళ్ళే బస్సుల ఏర్పాటు కూడా చేయడం జరుగుతున్నది. రేపు మార్నింగ్ మళ్ళీ వాళ్ళు టెన్షన్ పడకుండా ఇవాళ ఈవినింగ్ వస్తేనే ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా పిల్లలు కూడా ఎగ్జామ్స్ సాఫీగా రాసుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది. తర్వాత రేపు మార్నింగ్ 10 to 1 ఇంజనీరింగ్ ఎగ్జామ్ కాబట్టి రేపు మండల్ హెడ్ క్వార్టర్స్ నుంచి వెళ్ళి 5:30 నుంచి వెళ్ళి మొదటి బస్సు ట్రిప్పులు మొదలవుతాయి కాబట్టి ఆ బస్సులు కూడా డిస్ట్రిక్ట్ సెంటర్స్లలో ఇవాళ కలెక్టర్ रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने उनके हल्के के तमाम प्ले ग्राउंड्स के लिए मुताल्लिक़ा कोचेस को स्पोर्ट्स का सामान फराहम किया। मजलिस की नुमाइंदगी पर GHMC की तरफ से प्ले ग्राउंड्स में बच्चों और नौजवानों के लिए मुख्तलिफ स्पोर्ट्स का सामान फराहम किया गया है। इस मौके पर रुकन असम्बली ने कहा कि मजलिस हमेशा से बच्चों और नौजवानों में खेल कूद को फ़रोग़ देने के लिए नुमाइंदगियाँ करती आई है। उन्होंने कहा कि बच्चों और नौजवानों को खेल के शोबे में हौसला अफजाई के लिए मज़ीद सहूलतों की फराहमी के इक़दाम किए जाएंगे। हल्के नामपल्ली के अंदर विजयनगर में स्पोर्टिंग ग्राउंड के अंदर जो GHMC के जानिब से हमेशा समर कोचिंग कैंप स्पोर्ट्स के लिए जो होता है उसका इनाग्रेशन हुआ है, जिसके अंदर करीब 18 ग्राउंड के वॉलीबॉल है, फुटबॉल है, क्रिकेट है, कराटे है और जो अदर गेम्स हैं उन सब का मटेरियल प्रोवाइड किया गया है। चूँकि नामपल्ली कॉन्स्टिट्यूंसी में मैक्सिमम ग्राउंड्स है, ये जो 18 ग्राउंड है इसके अलावा भी और भी ग्राउंड है उसको भी मटेरियल दिया जाएगा। और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से ख़ास तौर से बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास दिलचस्पी और निगरानी के अंदर जो हमेशा स्पोर्ट्स के ऊपर तवज्जो दी जाती, चूँकि फ़िज़िकल फ़िटनेस आज के लिए बेइंतहा ज़रूरी है। रुकन असम्बली चारमीनार और मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी ने हुसैनी आलम डिवीज़न के इलाके चौक मुरगा का दौरा करते हुए ज़ेर तकमील प्रोजेक्ट का जायज़ा लिया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि शब मेराज के पेश नज़र
ड्रेनेज के मेनहोल्स पर कोर्स कवर्स डाले जाएंगे ताकि सड़क काबिल इस्तेमाल हो जाए। उन्होंने बताया कि सड़क पर पैच वर्क भी किया जाएगा ताकि लोगों को गर्द व गुबार से बचाया जा सके। इस मौके पर साबिक मेयर बल्दिया मीर जुल्फ़िकार अली, साबिक रुकन बल्दिया मोहम्मद गौस, महकूम बल्दिया के अहदेदारों के अलावा मजलिसी कारकुन मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर मौजूद थे। मेनहोलों की रिपेयर करके पूरे मेनहोल तैयार करके ये काम की कंप्लीट करना। उसके बाद यहाँ पर पैच वर्क होगा। ये गर्द जो उठ रही है वो ख़त्म हो जाएंगी। फिर माँ बाकी इसका दूसरा हिस्सा सेकंड बिड है जो जामा मस्जिद चौक के से अब्दुल्ला बिल्डिंग तक है, वो उसको रमज़ान के बाद शुरू करेंगे ताकि रमज़ान में एंड टाइम पे किसी को कोई तकलीफ़ ना हो। वो ड्रेन का काम कंप्लीट होने के बाद उधर इकबालत दौड़ा की देवड़ी से और ये अब्दुल्ला बिल्डिंग से जितना भी पानी का बहाव है वो बहाव इधर से होता हुए मूसा नदी में जाएगा। एक बड़ा प्रोजेक्ट की मंजूरी ली गई थी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से। ये कामों को जायज़ा लिया गया, हिदायत दी गई इंजीनियरों को कि इस काम की जल्द से जल्द तकमील करना। साबिक मेयर और साबिक कॉरपोरेटर जुल्फ़िकार अली साहब, हमारे साबिक डिप्टी फ्लो लीडर GHMC मोहम्मद गौस साहब, हमारे इब्तिदाई के अहदेदार बल्दी बरकी आबरसानी के अहदेदार भी हमारे साथ हैं। हमको तवक्को है कि काम जल्दी मुकम्मल होगा। यहाँ के लोगों का भी हम शुक्रिया अदा करते हैं कि काम के दौरान थोड़ी तकलीफ़ इन लोगों को हो रही है, लेकिन उसके बाद हमेशा के लिए आराम मिलेगा। उनकी सहूलत के लिए काम किया गया है। इंशाल्लाह हम जितना जल्द हो सके काम की तकमील कराएंगे। शुक्रिया। तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी ने सवाल किया है कि मकामी अवामी नुमाइंदों को शामिल किए बगैर हैदराबाद की तरक्की कैसे होगी। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि हैदराबाद में कई मसाइल मौजूद हैं, लेकिन हुकूमत सिर्फ अपने एजेंडे पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि हुकूमत के रवैये के खिलाफ 15 मई को GHMC का घेराव किया जाएगा। बीजेपी लीडर का कहना था कि सेक्रेटेरिएट की मुंतकिली के मसले पर हुकूमत सिर्फ वक्त ज़ाय कर रही है, जबकि हैदराबाद के नाम पर करोड़ों रुपए के ऐलानात किए जा रहे हैं, लेकिन अमल कुछ नहीं है। इसके अलावा तेलंगाना बीजेपी के अरकान असम्बली ने 4 शंबे को गवर्नर ESL नरसिम्हन से मुलाकात करते हुए रियासती हुकूमत और वज़ीर आला के खिलाफ शिकायत की है। बाद में मीडिया से बात करते हुए बीजेपी के फ्लोर लीडर डॉक्टर के लक्ष्मण ने बताया कि GHMC इंतखाबात के पेश नज़र स्वच्छ हैदराबाद का प्रोग्राम बनाया गया है और तेलंगाना हुकूमत इस प्रोग्राम के ज़रिए तकरीबन 200 करोड़ रुपए की अवामी रकम लूटना चाहती है। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के खिलाफ कार्रवाई करने का गवर्नर से मुतालबा किया गया है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल के बारे में वज़ीर आला से भी मुलाकात की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने वक्त नहीं दिया। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई में हुकूमत की लापरवाही पर गवर्नर से मुदाखलत की अपील की गई है। वक्फे के बाद खबरनामे में एक बार फिर आपका इस्तकबाल है। हुकूमत के खिलाफ बीजेपी अरकान असम्बली की मुसलसल तनखीदों के पस मंज़र में वज़ीर कमर्शियल टैक्स T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि बीजेपी अपनी सियासी बका के लिए निचली सियासत पर उतर आई है। मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के आगाज़ से पहले ही बीजेपी खौफज़दा हो रही है। उन्होंने कहा कि बीजेपी को निचली सियासत बंद कर देनी चाहिए। हुकूमत हिकमत अमली के साथ प्रोग्राम मुनज़्ज़म कर रही है और इस सिलसिले में जुमेरात को कुल जमाती इजलास भी मुनक़िद किया जाएगा, जिसमें अरकान पार्लियामेंट और अरकान मुक़न्ना के अलावा कंटोनमेंट बोर्ड के नुमाइंदों को भी मदऊ किया गया। श्रीनिवास यादव ने बताया कि हुकूमत सबको साथ लेकर चलना चाहती है और उसे अच्छी तरह पता है कि क्या करना है। నిన్న బీజేపీ వాళ్ళు వాళ్ళ రాజకీయాల అవసరాల కోసం వాళ్ళ అస్తిత్వం కోల్పోతామనేటువంటి భయంతోనే నిన్న చీప్ పాలిటిక్స్ చేయడానికి ముఖ్యమంత్రి గారు ఆఫీస్ దగ్గర కూర్చోవడం, ఈరోజు ప్రెస్లో మాట్లాడినప్పుడు కూడా ఏదో మమ్మల్ని ఇగ్నోర్ చేస్తుండ్రు, లేకపోతే 200 కోట్ల రూపాయలు వృధా చేస్తున్న విధంగా మాట్లాడుతున్నారు. ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ కాకముందే మీకు అనుమానాలు ఎందుకు వస్తున్నాయి, లేకపోతే ప్రోగ్రామ్ స్టార్ట్ కాకముందే ఎందుకు భయపడుతున్నారో నాకైతే అర్థం కాలేదు. రాజకీయ అవసరాల కోసం లేకపోతే నీతి మాలినటువంటి రాజకీయాలు చేయాలనేటువంటిది దయచేసి మానుకోవాలని చెప్పి నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. सड़कों पर रातें गुजारकर वक्त ज़ाय करने वाले नौजवानों को गफलत से जगाने के लिए
4 टीवी पर नशर की गई खबर का हौसला अफजा रद्द-ए-अमल सामने आया है। पुलिस की हरकत में आने से गली कूचों और नुक्कड़ों में नौजवान कम दिखाई दिए। पुलिस ने तो अपनी कमर कस ली है, अब सरपरस्तों को भी होश के नाखून लेने की ज़रूरत है। मंगल और चारशंबे की दरमियानी शब शहर में क्या हुआ, इस ताल्लुक़ से पेश है पुलिस की मुस्तैदी की एक रिपोर्ट। शहर में बेकार शब गुजारी करने वालों की सरगर्मियों को रोकने के लिए बिलाखिर पुलिस ने कमर कस ही ली। 4 टीवी पर खबर नशर होने के फौरी बाद सिटी के इंचार्ज और एडिशनल कमिश्नर बाबू राव ने सड़कों पर रातों में आवारागर्दी करने वाले नौजवानों को धूल चटा दी। पुलिस की गश्त ने गली कूचों में मस्ती करके धमाल मचाने वालों को उल्टे पांव भागने पर मजबूर किया। खुद एडिशनल कमिश्नर बाबू राव अपनी टीम के साथ न सिर्फ शहर की गश्त के लिए निकल पड़े, बल्कि तमाम पुलिस ऑफिसर्स को हिदायत दी कि कोई नौजवान सड़क पर बेकार बैठा हुआ नजर ना आए। इन्होंने इंतबाह दिया कि अगर किसी किस्म की नरमी बरती गई तो वो खुद वीडियोग्राफी करेंगे और खाती पुलिस ओहदेदारों को नोटिस भेजेंगे। रात 12 बजे के बाद नुक्कड़ों और चबूतरों पर नौजवानों के झुंड नजर नहीं आने चाहिए। इस सिलसिले को ख़त्म करने के लिए ना सिर्फ गश्ती टीमें मुतहरिक नज़र आईं, बल्कि जगह जगह तलाशियां भी ली गईं। साथ ही साथ गांजा और शराब के अड्डों पर भी तलाशी कार्रवाइयां अंजाम दी गई। कई मुकामात तो नौजवानों को भागते हुए भी देखा गया। बाज़ मुकामात पर पुलिस ने भागने वालों को रोक कर काउंसलिंग की और ख़बरदार करके छोड़ भी दिया, और बाज़ मुकामात पर नौजवानों के सरपरस्तों को इत्तला भी दी गई। बाज़ बाज़ारों में जहां रात देर गए तक भी दुकानें खुली थी, दुकानदारों को ख़बरदार किया गया कि अगर वो अपना कारोबार इसी तरह जारी रखेंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बाज़ दुकानदारों ने बताया कि वो दुकानात खुली रखने के लिए मुकामी पुलिस को मामूल देते हैं। एडिशनल कमिश्नर ने तयक़ुन दिया कि मामूल वसूल करके नरमी बरतने वाले मुकामी पुलिस जवानों को बख्शा नहीं जाएगा। 4 टीवी पे नशर की गई खबर ने आला अहदेदारों को बेदार करने में तो कामयाबी हासिल कर ली, लेकिन अब देखना यह है कि मातहत पुलिस अहदेदार कितने मुतहरिक होते हैं। साथ ही साथ ये भी देखने वाली बात होगी कि पुलिस की यह मुहिम 2-4 रोज़ पर मुश्तमिल होगी या फिर मुस्तकिल तौर पर शब गुजारी के इस लानत को ख़त्म किया जाएगा। ये भी देखने के लायक होगा कि जब पुलिस के आला अहदेदार अपने मातहत मुकामी पुलिस जवानों के खिलाफ क्या और कैसे एक्शन लेंगे जो मामूल वसूल करके अपने जिम्मेदारियों से कोताही बरतते हैं। कैमरा पर्सन नुमान के साथ SM रफ़ी, 4 टीवी न्यूज़। मादनापेट पुलिस स्टेशन के हुदूद में वाक़े क्वार्टर्स में स्वच्छ हैदराबाद मुहिम के सिलसिले में साफ़ सफाई के काम किए गए। एडिशनल DCP बाबूराव की क़ियादत में पुलिस मुलाजिमीन ने सफाई अंजाम दी। इस मौके पर बाबूराव ने बताया कि सिटी कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी की शख्सी दिलचस्पी की वजह से पुलिस मुलाजिमीन साफ़ और सब्ज़ हैदराबाद के लिए मुतहर्रिक हो गए हैं। उन्होंने बताया कि दीगर इलाक़ों में भी ऐसी ही मुहिम अंजाम दी जाएगी। आजमपुरे में कई मकामात पर बरखी तार और खंबे खतरा बनते जा रहे हैं। इलाके में कई तार सड़क को लगे हुए देखे गए। शहरी इलाकों में बरखी तारों की ये हालत बरखी हुक्काम की लापरवाही को ज़ाहिर करती है। बरखी हुक्काम की ये लापरवाही किसी बड़े हादसे की वजह भी बन सकती है। मकामी अवाम ने शिकायत की है कि बरखी तारों और खंभों की हालत पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। कमसिन बच्चे कभी भी खेलते हुए हादसे का शिकार बन सकते हैं।
हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने सोशल सिक्योरिटी पेंशनर्स ऑफ तेलंगाना से ख्वाहिश की है कि वो अपने बैंक अकाउंट्स खोलें। वजीफे की रकम की तकसीम के अमल में दरपेश मुश्किलात को कम से कम करने के लिए ये इक़दाम किया गया है ताकि आइंदा महीने से वजीफे की रकम वजीफे खारों के बैंक अकाउंट्स में मुंतकिल की जा सके। बाबानगर के इलाके में इक़दाम कत्ल की एक वारदात पेश आई है। तफसीलात के मुताबिक नामालूम अफराद ने 32 साला मोहम्मद इनायत पर कातिलाना हमला करते हुए उन्हें शदीद ज़ख्मी कर दिया। चंद्रयान गुट्टा पुलिस ने एक केस दर्ज करके इनायत को उस्मानी दवाखाना मुंतकिल किया और तहकीकात शुरू कर दी। दुंडीगल में वाक़े सुरारम तालाब में तैराकी के दौरान एक नौजवान और एक 8 साला लड़का गर्क़ाब हो गए। पुलिस के मुताबिक 25 साला के श्रीनिवास और 10 साला अरविंद मामू भांजे थे। ये तैराकी के लिए तालाब गए थे और गर्क़ाब हो गए। पुलिस ने दोनों की लाशें मकामी अफराद की मदद से निकाली। सुर्खियों पर एक नज़र डालते हुए खबरनामे का इख्तिताम करते हैं। आरटीसी मुलाजिमीन को 44% फिटमेंट देने से वजीर आला का इत्तेफाक। मुलाजिमीन तंजीमों के साथ वजीर आला की बातचीत। $4,300 कॉन्ट्रैक्ट मुलाजिमीन को बाकायदा बनाने का ऐलान। आरटीसी के सुबुकदोश मुलाजिमीन को मुफ्त सफ़र की सहूलत फराहम करने का तयक़ुन। स्वच्छ हैदराबाद प्रोग्राम के तहत शहर के 400 हिस्से, हर हिस्से का जिम्मेदार एक अवामी नुमाइंदा या सरकारी ओहदेदार। और तेलंगाना में जुमेरात को एमसेट इम्तिहान, तमाम तैयारियां मुकम्मल। वक्त से पहले इम्तिहानी मराकिज़ पहुंच जाने तलबा को मशवरा। अब इजाज़त दीजिए, फ़ी अमानिल्लाह।